So let us start with the same chapter, agriculture, with the topic cropping pattern of India. In the last class we have already discussed about the first type of crop, that is Rabi crop. So basically क्रॉपिंग पैटर्न को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर तीन फॉर्म्स में, तीन कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया है. फर्स्ट वन रबी क्रॉप, सेकंड खरीफ, एंड द थर्ड कैटेगरी इज ज़ैद. Let us start with the first category, that is Rabi crop. So as you have already studied in your previous classes, हम लगभग 6 या 7 से ये वाला टॉपिक पढ़ते आते हैं, रबी, खरीफ एंड ज़ैद. फिर भी हम कहीं ना कहीं उसके मंथ्स एंड क्रॉप्स वगैरह कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. That is why this part is added in your syllabus. So let us start with the first Rabi crop. Come and read. Rabi crop. These are sown at the start of winter, October to December, and harvested in spring or at the start of summer, April to June. Some crops cultivated in this season are wheat, berry, peas, grain, and mustard. These crops are grown in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, and Uttar Pradesh. Region of the successful Rabi crops in winter months is due to the winter temperate cyclones that cause rainfall. The Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and parts of Rajasthan has led to the growth of Rabi crops in this region. Okay, thank you. So first we are starting here with the first type of crop, that is Rabi crop. No doubt Rabi crops are sown, means इनको कब लगाया जाता है, कब बोया जाता है, in the season of winter. Now winter में कहाँ से, अक्टूबर से लगा के लगभग दिसंबर तक में इनका काम जो हो जाता है वो लाइक सोइंग वाला पूरा हो जाता है. एंड आफ्टर दिस सीजन, जब स्प्रिंग सीजन आ जाता है, लाइक अभी जो चल रहा है इट इज स्प्रिंग सीजन ओनली, लाइक जब विंटर एंड हो रहा होता है तब स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत. तो इसको क्या किया जाता है, स्प्रिंग सीजन में हार्वेस्टिंग होती है. हार्वेस्टिंग मतलब कि वो उनकी पूरी ग्रोथ हो जाती है, वो पूरे पक जाते हैं, अब उनको क्या होता है, काटना होता है, उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है. तो बेसिकली द क्रॉप्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दिस आर व्हीट, बार्ले, पीस एंड ग्राम एंड मस्टर्ड. ये सब जो कुछ है क्रॉप से जो इसमें क्या होता है इंक्लूडेड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टेट्स बेसिकली व्हिच प्ले dominant role in the growth of this type of crops are Punjab, like you can say northern plains वाले जो हैं states वो इसमें dominant role play करते हैं. I hope so you know about northern plains, the second physical division of India. So वहाँ पर mainly कौन-कौन से dominant state है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पार्ट उत्तराखंड का भी है, कुछ पार्ट हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ऐसे करके. इसके अलावा नॉट ओनली दिस स्टेट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट्स आल्सो वी हैव मेनी मोर स्टेट्स लाइक एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात. वहां पर भी क्या होता है, रबी क्रॉप्स की पूरे फुल फ्लेजेड सोइंग की जाती है, मतलब लगाए जाते हैं रबी क्रॉप. बेसिकली व्हीट एंड अदर टाइप ऑफ ग्राम्स लाइक चना एंड ऑल, वो भी लगाए जाते हैं इस सीजन. सो लेट अस राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू Rabi crop. First point, sown in the month of in the season of winter. Now in bracket, here we are writing in short form. Exam में आपको थोड़ा अपने sentences को elongate करके लिखना है, right? Basically from October to December. Harvested in the month of harvested in spring. Now spring season basically you can say
basically सर आपने अप्रैल to जून लिखा here you can write March to April. June is like very late. May almost हो सकता है पर जून तक तो अगले सीड की शोइंग शुरू हो जाती है. So you can write here April. Up to April it is okay. Okay, now which kind of crops are shown here? Basically, wheat, mustard, barley, pea, gram, and many more can be added. Now basically the states where this kind of crops play dominant roles are Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, UP, etc. So if you are noting it down, write it fast. Now if we talk about these states, पंजाब हरियाणा यही वो स्टेट्स है जहाँ पर क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का कहीं न कहीं शुरुआत हुई थी. ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली इट इज द रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाया था. प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया था? अब इट वाज increase because of the use of HYV seeds, high yielding variety seeds and chemical fertilizers. इनका यूज करके जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसको बढ़ाया गया था और फिर वो धीरे धीरे ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया. बट अल्टीमेटली पंजाब हरियाणा प्लेड द इनिशियल रोल फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन. Now we are going to discuss about the next type of crops, that are kharif crops. I hope so you have noted it down. सर पे चलो ना, वो इसके बीच में आता है. What is the serious number? You just don't give like. Because Rabi and Kharif are the main one, Zaid is somewhat not so important usually. That is why we are adding it at the end. Okay, now let us move towards the next type of crop, Kharif. It is okay. Come and read. Now we are going to discuss about the next type of crop, that is kharif. These crops are sown during the monsoon, May to July, and harvested in September to October. Major kharif crops are paddy, rice, maize, jawar, bajra, tur, moong, urad, cotton, jute, groundnut, and soybean. Major areas where the paddy is cultivated are Assam, West Bengal, coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, and Haryana. In well-irrigated areas of Assam, West Bengal, and Odisha, 3 crops of paddy are grown in the year, named as Aman and Boro. Okay, thank you. Now let us discuss about खरीफ क्रॉप. नो डाउट हमने रबी का देख लिया था, विंटर सीजन वाला. हम खरीफ की बात करें तो इट इज सोन इन द मॉनसून सीजन, मतलब बारिश के मौसम में बोए जाते हैं और लगभग मई से जुलाई तक, एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर. इवन नवंबर भी कभी कभी आ जाता है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेजर क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स जो बात करें मेजर मेन उनके, तो एक तो राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ऑल काइंड ऑफ पल्सेस, tuer, moong, urad. Apart from that, cotton, soyabean, groundnut, all that are main part or main, you can say, major crops of kharif. Apart from this, if we discuss about the main region बात करें जहाँ पर खरीफ क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा लेवल पे होता है, तो we can say Assam,
वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। बेसिकली जहाँ पर यू कैन से राइस वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो लेट अस राइट डाउन। The next type is Kharif. So in the month of or monsoon, basically May to July. Next, harvested in the month of September to October. The next major crop rice. Apart from rice, pulses, all kind of beans, cotton, soybean, groundnut, okay, and the major region, the main areas where this crops are grown are basically Tamil Nadu, कोस्टल एरिया don't speak, major region Tamil Nadu, Assam, Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, no doubt again Punjab and Haryana. They are like they are the dominating states of agriculture, you can say agriculture sector, because of even you can say green revolution also started from there only. So जितना भी कुछ नया टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो सभी एडवांसमेंट कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा से स्टार्ट होता है. You can ask in a better way. After Punjab Haryana. सर सब अदर स्टेट्स आर इधर ऐसा ईटीसी Okay, so this is all about खरीफ क्रॉप जो कि मई जुलाई में मॉनसून सीजन में लगाए जाते हैं. सितंबर अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग होती है. एंड मेजर क्रॉप कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, पल्सेस, बीन और जो मेन एरिया है रीजन है वो तमिलनाडु, आसाम, देन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा. All these states played a major role in the production of kharif crop. Note it down. मूंगफली. Now we will start with the next type of crop, that is rice. बिहार में सर ये राइस है ना, रबी क्रॉप में भी शोध होती है. बिहार बिहार में राइस रबी में भी शोध होती है, उगाते हैं.
like major rules, major states. No doubt कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी लगाते हैं, but it doesn't play the dominant role. लेकिन सर वो दोनों सीजन में लगाते हैं तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करता होगा ना, तो सर उसको डोमिनेट धान, it is like जनरली हमारे यहाँ पे छोटे मोटे धान लगाए जाते हैं, लाइक राजगिरा वगैरह, ये जो बहुत कम लेवल में लगते हैं, बाजरा, ये सब इस टाइप, ज्वार, ये इस टाइप के वो भी होते हैं. ओके, so now we are going to start with the next type of crop, that is zest. बेसिकली रबी और खरीफ को छोड़ के जो थर्ड टाइप का है, मार्च और जून के सीजन में लगाया जाता है. एंड बेसिकली ये पूरा फ्रूट बेस्ड क्रॉपिंग है. ये पूरी जो क्रॉप्स है वो फ्रूट बेस्ड है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कोई भी मेन ग्रेन्स नहीं आते. फॉर एग्जांपल लाइक मस्क मेलन, वाटरमेलन, ककम्बर एंड अदर वेजिटेबल्स. मेन जहाँ पर क्रॉप इंक्लूड नहीं होते हैं, ऑल दैट पार्ट्स कम अंडर ज़ैद क्रॉप. फॉडर मीन्स जो कि जानवरों को चराने के लिए जो लगाया जाता है, चारे के लिए, दैट इज फॉडर. सो द थर्ड टाइप इज ज़ैद. तीनों तो नहीं, बट शुगर कैन बी इंक्लूडेड इन. मेनली कौन से एरिया में? वो लगभग एक बार करता है, वापस से उसको लगाने लग जाते हैं. इट कैन बी इंक्लूडेड. बोल. इट टेक्स लाइक लॉन्गर ड्यूरेशन, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया. ज़ैद में फ्रूट रिलेटेड सारी चीजें हैं इसमें. बस यहाँ पर रहेगा कि कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन जो इसमें मेंशन है वो उससे एक्सेप्शनल केस है. कुछ होते हैं लाइक शुगर कैन आल्सो टेक लॉन्गर टाइम, तो इसलिए उनको कौन से एरिया में बेसिकली ये कौन सी चीजें इसमें हो सकती है. मार्च से लगा के जून का मंथ. ज़ैद जो है वो जनरली बहुत बड़े लेवल पर इसकी खेती नहीं होती. दैट इज व्हाई देयर इज नो सम डोमिनेंट एरिया जो कि इसमें मेंशन किया है. इज इट रिलेटेड इन, इज इट मेंशन इन द बुक? देयर इज नो स्पेसिफिक एरिया जहां पर मेनली ज़ैद के लिए क्रॉपिंग की जाती है. लेकिन इंडिया तो बहुत लार्ज हो हॉर्टिकल्चर में. सर इंडिया तो फर्स्ट पे हॉर्टिकल्चर में जैसे फूड वगैरह बोलते हैं, तो बेसिकली यू कैन से हिमाचल जहाँ पर एप्पल्स वगैरह की होती है. देन जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र फॉर ऑरेंजेस एंड ऑल. ड्राई फ्रूट जो नदर्न स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल. एक्सेप्शनल. ज़ैद नहीं आना चाहिए वैसे तो, बट दे आर एक्सेप्शनल बिकॉज उनकी अलग से वो पेड़ होते हैं. इट टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन. सो मार्च टू जून कौन से मेजर क्रॉप? नाउ यहाँ पर हार्वेस्टिंग का टाइम भी मेंशन नहीं किया है, बिकॉज ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं. कुछ फ्रूट्स जो है कम समय में हो जाते हैं, कुछ फ्रूट्स जो है लॉन्गर ड्यूरेशन ले लेते हैं. दैट इज व्हाई हार्वेस्टिंग का टाइम यहाँ पर मेंशन बेसिकली नहीं है. ऑल वेजिटेबल्स. cucumber, watermelon, watermelon,
वेजिटेबल्स जो कि जनरली इस मार्च से आगे जून तक में लगाई जा सकती है, यू कैन इंक्लूड दैट। बेसिकली अब दूसरे मौसम में भी वेजिटेबल की क्रॉप खेती हो रही है तो अल्टीमेटली हेल्पिंग दैट। यहाँ पर मंथ का कुछ ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं अबाउट सेल। Also some fodder crops. Fodder means the crops which are dedicatedly grown for cattle. So all these are about cropping pattern and खल जो बेसिकली वो आपके ग्राउंडनट का ही जब पूरा उसका ऑयल निकाल लिया जाता है, जो बचा हुआ रिमेनिंग होता है उससे खल बनता है। वो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट से बनती है, ऐसे क्रॉप से जो ऑयल जिससे ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो इसके एग्जांपल चारा